Morning, Yasharth. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. So finally, we have decided to meet you online, huh? Yes, sir. But obviously, we have a planning to meet offline too. जिसमें आपके मम्मी पापा को भी हम बुलाएंगे. Actually, it is going to be a big program because हम सर से ये बात शेयर कर रहे थे बैठ करके कि लाइक कोई इंजीनियरिंग क्वालिफाई करता है तो आईटी क्वालिफाई किया तो कैमरा लेके मीडिया सब पहुंच जाते हैं तेज़ी के साथ, या फिर कोई आईएएस क्वालिफाई किया तो पूरा मीडिया न्यूज़ चैनल्स कवर करते हैं. बट इतना बड़ा अचीवमेंट पूरे देश में, आई थिंक एनडीए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री ऑन 10+2 लेवल. बट कहीं ना कहीं वो लेवल का जो मीडिया इन्वॉल्वमेंट, वो अवेयरनेस, वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन नहीं क्रिएट होता है. तो मुझे लगता है कि अब दूसरों से आशा हम नहीं करते, हम खुद ही इसकी शुरुआत करने वाले हैं. एंड आई थिंक पेरेंट्स भी डिज़र्व करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी वो अपब्रिंगिंग, वो गाइडेंस रहा, बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ें हो पाई हैं. तो हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं. तो वेरी सून वो प्लानिंग प्रोजेक्शंस आपको मिलेंगे पूरे के पूरे. आपको श्रेयांश सर गाइड करेंगे, गौरव सर बताएंगे कैसे आगे हम प्रोजेक्ट करेंगे. तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले. एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से. आप कुछ कैप्टन सर कहना चाहेंगे आपको? Good morning, Yasharth. Good morning, sir. First of all, I would like to thank you so much. Just because of your guidance, I'm here. And recently, I got to know that you were facing some kind of health issues. But so I'm hoping you are fine now. Yes, I'm absolutely fine, Yasharth. You people make us fit every time. Sir. Lots of blesses, huh? Yes, sir. That's very nice. तो 17 SSB Banglore. Sir, 12th SSB. अच्छा, it's a 12 SSB Banglore. That's very nice. Okay. तो कब आपका रिपोर्टिंग था? उस जर्नी कुछ बताएं सबसे पहले साथ. Yes, sir. My SSB date was on 9th of August. So on 8th of August, I just left my house, took a flight from Lucknow airport, reached there at about 4:30 on Bangalore airport. There I just stayed in a hotel, and the very morning of 9th of August, I reached the SSB center. There were 87 reporting, and there were a huge group of repeaters, and slightly many like 12 were the freshers appeared. Okay. Then we gone through the screening process, which starts with an OIR test. Then we have a PPDT session, and it went pretty good for me. Discussion wasn't that much big as the group was of repeaters, so the GTO sir wasn't happy with so much of chaos. He ended up the discussion in 1 hour. I think it was ended in 2 minutes only. Okay. And then screening result were announced, and I got screened in, and that's how the procedures went forward. Okay. How many can it got screening in out of 87? Out of 87, 27 got screened in. It's a very nice again. It's a 1/3 ratio is going on exactly. So maximum repeaters are, some freshers are also there. Even you are in 27. There were only 3 freshers. Okay. And rest all are repeaters. Okay, rest are repeaters. Okay. Okay, sir. Now, next question would really want to ask कि how is the overall experience? Like, ठीक है, आप screening part से गए, and further psychology, GTO interview, overall till conference कैसा experience रहा आपका? Yes, sir. As I have done with my screening process, the second day was of my psych test. So yes, the psych test was absolutely fine. We were giving up plenty of time for every test. Also, there was nothing such kind of negative pictures and negative words. So it was a pretty good thing for us to cope up with the things. And on the very same day, I have my interview was planned. So my interview went pretty good as well. And the next day, all the GTO tasks, including the GD, GP, and all, that went pretty good. Also, the individual obstacles, since Bangalore is prone area for raining, so the individual obstacles were quite risky. So out of 10, we were bound to do only 4-5 individual obstacles because GTO sir don't want us to get injured. And after that, we have lecture sessions and PGT, LGT, final group task, command task, everything good. But most memorable part for my SSB, I would say it was conference, because there was a big discussion before my call up in the conference hall. And when I reached there, everyone was sitting in the uniform. It was the first day when we see officers in uniform. And the president of the board started asking me all the interview questions.
and my conference last 15 minutes. So that was something which I wasn't expecting, but that went happen. So it went pretty good. And then after the results were announced for the recommended candidates, So how many candidates finally got recommended in 27? out of 27, 9 were recommended, sir. So again, good result. One third. Excellent result. Exactly, Vimsi. Yes, sir. Okay, और exactly 3 freshers जो थे उसमें से कितने recommend हुए? So one. 1. And that is Yasharth. I was a repeater. He was in Last the- time- last time Okay, was last time. conference out. अच्छा, last time was conference. Last time I was confident. Which board sir? किस board से थे sir last time? Vishakhapatnam. Patna through the Indian Navy. Okay, sir. Chalo, Yasharth, now tell me one thing. How much useful this training session you had gone through in MKC? How much it helped you over there? Sir, how much is it helped me very much because I was a complete civilian background, knowing nothing about what SSB procedures, how to tackle them, what all things are asked in SSB. Getting into MKC, I get to know what all things are there, and so much guidance getting from you, sir. That went pretty good for me this time also. And how was your OIR? Like OIR practice हम लोग यहाँ तो करते थे. कुछ पैटर्न में चेंज आया है? कुछ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं? Nothing changed, sir. Everything was fine, and that too, I was astounded to see that they were giving up plenty of time to write the OIR test. Okay, great. तो वो प्रेशर शायद MKC में ज्यादा था, वहाँ कम था. ये चीज आती है. Yes, sir. We are being trained to just keep that pressure in our minds, but nothing was like the same on the real SSB. Exactly, कहते हैं कि आप मैक्सिमम पे तपा देते हो तो फिर दिक्कत ही नहीं आती, वहाँ पे लगता है यार ये तो नॉर्मल हो गया. नहीं, यशार्थ, एक चीज शायद आपको याद होगी. When I was interacting to you in class, I had told you very frankly कि अगर आपका सिलेक्शन रुकता है तो वो सिर्फ आपकी वजह से ही रुकेगा. आपकी वजह से. Yes, sir. आपको याद है? Yes, sir. I just got that thing so much. And in my last SSB, when I got conference out and came back to you, and you told me to just self-introspect yourself, what all wrongs you have done. And then I literally felt that the previous SSB, the cause of my rejection was my nervousness only. As you only say, never run behind selection, just give your best. Exactly. So this time I did it, and the results are here. एग्जैक्टली सर, ये मुझे बहुत सही भी लगता है. जैसे हम लोग लगातार यही बात कर रहे थे कि जब तक वो मैच्योरिटी, वो सिंसियरिटी नहीं क्रिएट होगी तब तक रिजल्ट्स नहीं होंगे. और जब वो मैच्योरिटी के साथ आप हर टास्क को लेते हो और अपना बेस्ट देते हो, आप बिना ये सोचे कि रिजल्ट्स क्या होंगे, आउटकम क्या होगा, तो मुझे लगता है कि फिर रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है, उसमें फिर कोई डाउट रह ही नहीं जाता है. Yes, sir. So now another personal question to you, Yasharth. साइकोलॉजिकल टेस्ट में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में कितने वर्ड्स छूट गए थे आपके? Sir, I left no words. Okay, great. Yes, sir. And sir, one thing I would like to share, that in my conference, the president sir was completely stressing me on how you prepared your psychology test. Okay. Like the last 15 minutes, and out of those 15 minutes, 5 minutes, the discussion was on my psych test. Okay. Yes, sir. तो उसका परफॉर्मेंस बेस्ट गया था, नहीं, वाज एक्सपेक्टिंग कि कहीं ओवर ट्रेंड तो होके नहीं आ गया ये. एग्जैक्टली. हाँ, नहीं सर, बिल्कुल. यशार्थ जब यहाँ भी तैयारी कर रहे थे तो जो इनकी स्टोरीज वगैरह जब पढ़ते थे, जो रिक्वायर्ड चेंज था उतने की बात हम लोग करते थे, ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है. और मैंने हमेशा यशार्थ को एक ही चीज़ बोली थी कि बहुत ज़्यादा बदलाव मत लाइए, बस आप अपना जितना है आप जैसे हो वैसे ही चले जाओगे तो भी बहुत बढ़िया है. अभी छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपने सजेस्ट कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है. Another personal question to you: how many candidates of your group called you as their helper in command task? Out of we are a group of 10 people, and 7 called me. Wow, that is great sign. That is great sign. है ना? People believes on you. That is great thing. Yes, sir. और एक्सपीरियंस तो था ही, तो ऑब्वियसली वो लीडरशिप दिखने लगती है, ग्रुप को बिलीव होता है कि हाँ साथ ग्रुप में होगा तो बेहतर कर पाएगा. ओके, हाउ वाज जीडी एंड लेक्चरेट ओवरऑल कैसा रहा आपका? Sir, GD as usual 2 topics were given, and in the very first topic the content with me was slightly less, but still I spoke. In the second GD I just participated more, and GTO sir was quite happy with our group, so he gave the third topic as well. Okay. So 3 GDs which we performed, and in lecture 2 it was like there was no foundation of time.
like it was completely on GTO sir's will whether he would like to give 2 minutes, 1 minute, or more than 3 minutes. So that was the thing. And since our group was the biggest one out of the 3 groups out of 27 members, and 5 were recommended from my group only. That's great. That's great. अच्छा, एक एक्सपेक्टेशन पार्ट, अच्छा थर्ड जीडी टॉपिक का मतलब क्या होता है? लाइक 2 तो आइडियली हमें मिलता है, हाँ, बट थर्ड का क्या पॉइंट होता है? और जानना है पर्सनैलिटीज़ को, क्या है ये? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब जीटीओ को ऐसा लगा होगा कि ग्रुप अच्छा कर रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं, अच्छा पार्टिसिपेशन है, ये जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल कि हाँ भाई इसमें से आप तीसरे टॉपिक में जा करके देखें। तीसरा वाला जो टॉपिक होगा वो कंपैरेटिवली पिछले 2 से आसान होगा। वेरी इजी सर। हाँ, है ना? राइट राइट। ओके, हाउ वाज द इंटरव्यू पार्ट? लाइक सब अच्छा ही जा रहा है, जीटीओ तो इम्प्रेस चल ही रहा है आपसे, साइकोलॉजी एज यू टोल्ड की लाइक सर वो परफेक्ट था बिल्कुल। तो फाइनली टेल मी समथिंग अबाउट द इंटरव्यू पार्ट। Interview, yes sir, the interview sir was quite good, as he was keep smiling. Generally interviewers don't smile while taking the interview, and he was quite friendly with all of us whoever get his interview with. And the CIQ questions, that was I think I just made it good. Other than I felt I lagged some part of the GK questions he asked, but still I believe the interview was good because he was happy with my performance. He also congratulated me for doing he also advised me to do good in your GTO task at the last of the interview. That's very nice. That's very nice. कितना देर चला था आपका इंटरव्यू यशार्थ? Sir, it was around 45-46 minutes. 45 मिनट्स, बढ़िया था फिर तो। अच्छा, आई थिंक एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। लगता है कि लाइक इस बार साथ ठान के गया था, इस बार बिल्कुल डन करना है किसी भी कीमत पे, हाँ, नो क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली अभी एकेडमिक्स में क्या चल रहा है आपका साथ? Recently in this month of July my 12th result came. Okay, so I was appearing in some competitive exams. Okay. So that is वेरी नाइस। अक्सर देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है। जुलाई में रिजल्ट आया 12th का यशार्थ, और आप अगस्त में सेलेक्ट होकर के तैयारी कर रहे हैं एनडीए के लिए। दैट्स वेरी नाइस। और मुझे एनडीए में पहुंच गए। यही खूबसूरती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की। बिल्कुल सर। आई थिंक 10+2 लेवल पे, और फैमिली में कितनी पॉजिटिविटी आती है इस चीज़ को देख करके कि 10+2 जस्ट निकला, उसके बाद इसको नेशनल डिफेंस एकेडमी सीधा जाना है। जनवरी में आप वहाँ पे दिखाई देंगे। घर में सब लोग खुश हैं यशार्थ? very happy sir. पापा क्या करते हैं आपके? So he is an advocate. दैट्स वेरी नाइस। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि परिवार क्या, कितने भाई बहन हैं आप? So we are 4 brothers only. तो वो सारे जो है बड़े एज के छोटे हैं आपसे? I'm the youngest one. I have a twin brother. So, तो बाकी ब्रदर्स क्या करते हैं आपके? one is in a Bangalore company, affiliated marketing. The younger than him is pursuing his LLB, and we two are twin brothers. I'm just aiming to get into armed forces, and the other one is in medical line. ओके, इज इन मेडिकल लाइन। तो सबका बिल्कुल इंजॉय सेट है, हाँ, दैट्स वेरी नाइस। और मुझे लगता है कितनी बड़ी एक इंस्पिरेशन होगी उन सारे बच्चों के लिए कि अपीयरिंग से, लाइक आपने सितंबर वाला, लाइक सितंबर अटेम्प्ट तो नहीं रहा होगा, दैट वाज इन नवंबर ना 2021, तो नवंबर वाले में अपीयर हुए थे। हाँ, चलिए, उसी में आपका कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था एग्जैक्टली। देन फाइनली इन अप्रैल आप अपीयर हुए, एंड नाउ वी हैव एवरीथिंग हियर। दैट्स वेरी नाइस। साथ आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड फीलिंग रियली प्राउड। व्हाट अ मैच्योरिटी बच्चा, एंड व्हाट अ सिंसियरिटी। मुझे लगता है कि आप जैसे बच्चे डिजर्व करते हैं, और ये सबके लिए एक बड़ा मैसेज है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एसएसबी को जो बहुत हवा बनाने की कोशिश की जाती है, एग्जैक्टली वो है नहीं। इट्स ऑल अबाउट अ नेचुरल, जेन्युइन एंड गिव योर बेस्ट। जैसे सर ने कहा कि आपको नर्वस नहीं होना है, दिल से अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, बट कहीं कसक तो ये नहीं रह जाएगी कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो दैट्स ग्रेट थिंग। और मुझे लगता है कि इस तरह से जब आप एफर्ट्स करते हैं ज़िंदगी में ना, तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है। एंड सेकंड, मैंने जैसे शेयर किया कि गेट रेडी, पापा को भी बता दीजिए, मम्मा को भी, जल्दी यहाँ से इन्विटेशन जाएगी, एंड द होल फैमिली नीड टू कम हियर, बिकॉज सर ज़रूरत है कि इन सबको इतनी मेच्योरिटी से, मुझे लगता है देश में इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। सर बहुत बड़ी बात होती है यशार्थ। एक बड़ी अचीवमेंट हम लोग अपनी लाइफ में क्या देखते हैं पता है? जो भरोसा हम आपके ऊपर दिखाते हैं ना, जब आप उस भरोसे पे खड़े उतरते हैं ना, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है, और जब आप अपने उस पोटेंशियल को प्रूव करते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है आपके ट्रेनर्स के लिए, ठीक है। और मुझे अच्छे से याद है आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया था, है ना?
और उस दिन वो भरोसा जगा था कि भाई हाँ ठीक है, वी वर नोइंग कि दिस कैंडिडेट विल मेक इट आउट। सो यशार्थ, बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने इस पोटेंशियल पर काम करते हैं, है ना, और हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है ये सब चीज़ें। और एक अच्छी न्यूज़ बताऊं आपको, आपके साथ में एक और आपका कलीग था भुवनेश्वर, ही गॉट रिकमेंडेड Allahabad. Yes sir. अच्छा, राजेश्वर इनके साथ नहीं था, अखिलेश्वर अखिलेश्वर के बाद आया। अच्छा, अखिलेश्वर केम आफ्टर हिम। चलिए, अखिलेश्वर भी रिकमेंड हुआ, तो इट्स गुड रिजल्ट इज़ गोइंग ऑन नाउ। हमें भी बड़ी खुशी मिल रही है और अच्छा लगता है आप जैसे जब कैंडिडेट्स परफॉर्म करते हैं और आउटपुट देते हैं। एक हमारे लिए भी मोटिवेशन है, इवन जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं देश के अंदर, सबके लिए मोटिवेशन है। और सबसे बड़ी बात उन फाउंडेशन के बच्चों के लिए मोटिवेशन है जो 10th के बाद ही डिसाइड करते हैं कि मेरे को फ़ौज जाना है। तो आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं कि देखो, एक तरफ मेरे सामने बोर्ड का रिजल्ट है, एक तरफ एनडीए का मेरे को ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है साथ। और मुझे लगता है कि असली प्रिपरेशन यही है कि आप बोर्ड के रिजल्ट के साथ साथ एनडीए भी क्लियर करके बैठे हो, तो उसका अपना एक अलग ही मज़ा है, अलग ही स्वैग है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से और बहुत सारी शुभकामनाएं। वेरी सून यू आर कमिंग टू एमकेसी कैंपस विथ योर फैमिली एंड आई थिंक दैट रिस्पेक्ट, दैट ऑनर, दैट प्राइड वुड बी हैव, हम उसको आप साथ में शेयर करना चाहेंगे एंड विल गेट ऑल अपडेट रिगार्डिंग दैट। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। Thank you sir. विश यू वेरी गुड लक यशार्थ फॉर फ्यूचर लाइफ, राइज हाई इन योर लाइफ। ठीक है, हमेशा अच्छा करो। ठीक, और आप में बहुत पोटेंशियल है। एग्जैक्टली, बहुत पोटेंशियल है, आराम से बहुत अच्छा जाओगे, बहुत ऊंचाई तक जाओगे लाइफ में। अच्छी बात ये लगेगी कि जब आप वहाँ रीच करोगे तो विल गेट ऑल एमकेसियंस देयर। तो आपको जितने भी सीनियर मिलने वाले हैं सारे के सारे, अभी एक साल पहले गए 148 में एंड 147 में, तो बेसिकली इज फ्रॉम 149। हाँ, तो बेसिकली ज़्यादा पहले नहीं गए, एक साल पहले 6 महीने पहले ही सब गए हुए हैं। तो इट्स रियली ग्रेट कि जब अपने ही लोग उधर मिलते हैं तो सीनियर सपोर्ट जब करते हैं तो मुझे लगता है बहुत लाइफ आसान हो जाती है नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर, बिकॉज सीनियर्स ही वहाँ भगवान है, सीनियर्स ही वहाँ माँ बाप हैं, बड़े भाई हैं, सब कुछ वही हैं। और अच्छा होगा यशार्थ जब कोई आपका एमकेसीएन वहाँ पर ओवर स्टडी मिलेगा आपको। वो सबसे अच्छा हो जाएगा इसके लिए। हाँ, तो ये बढ़िया रहेगा। वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू यंगस्टर्स व्हाट दे शुड डू फॉर एनडीए? Just a single message sir, you have to be honest because SSB is your personality test. So but that personality will be shown if you are stay honest. So stay honest. Honesty is very important for playing SSB. राइट, एंड दिस इज समथिंग एवरीथिंग। मुझे लगता है ये जैसे समझ में आ गया बच्चे को तो सर उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। हाँ, दिस इज अ ट्रुथ एफर्ट। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आई विश यू गुड लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much.